तो वेलकम एवरीवन, दिस इज आवर क्लास 1। आज के क्लास में जो मैं पास कुछ समय से पेपर्स का पैटर्न देख रहा हूं, ये चैप्टर में भी डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं हो, बट इस चैप्टर से एक या दो प्रॉब्लम हर बार पूछ रहा है। मे बी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिसेस, बट इंडिसेस के जो लॉ है वो अप्लाई कर रहे हैं और लॉग से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो इंडिसेस से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और लॉगरिथम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर करना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी विल सी कि इंडिसेस के लॉ क्या बोलते हैं और लॉगरिथम कैसे रिलेटेड है, क्योंकि जो बच्चा इंडिसेस नहीं समझेगा वो लॉगरिथम भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। a टू द पावर x इक्वल्स टू n, a टू द पावर x इक्वल्स टू n। सो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं a को बेस बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे a को क्या बोल सकते हैं? बेस। और x को बोला जाता है इंडेक्स और पावर। x को क्या बोला जाता है? इंडेक्स और पावर। एंड n इज द आउटपुट, n is the output, n is the output. So we can say when the base a is raised to the power x gives us the output n. So अगर मेरे को कोई भी सम्स करना है तो मेरे को इस तीन में से दो चीज दिया हुआ रहेगा। या तो मेरे को बेस और आउटपुट दिया रहेगा, पावर निकालने बोलेगा, या बेस और पावर दिया रहेगा, आउटपुट निकालने बोलेगा, या पावर और आउटपुट दिया रहेगा, बेस निकालने बोलेगा। ऑल ऑफ अस एग्री कि अगर तीन वेरिएबल है तो दो वेरिएबल दिया रहेगा तभी तीसरा निकलेगा, हाँ या ना? सो अगर हम लोग एक चार्ट बनाते हैं बेस, पावर और आउटपुट का, अगर ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, ये और ये दिया हुआ है तो ये पूछेगा, और ये और दिया है तो ये पूछेगा, राइट? चलिए आते हैं सामने हम लोग। सो a to the power m into a to the power n gives me a to the power m plus n. So when base is same and powers are, when it is in multiplication, powers get added. Similarly अगर यही चीज डिवाइड में होगा तो m माइनस n हो जाएगा। इसीलिए x to the power 5 into x square becomes x to the power 7, and x to the power 5 divided by x square becomes x to the power 3. 7 का कॉन्सेप्ट क्या है? 5 प्लस 2। 3 का कॉन्सेप्ट क्या है? 5 माइनस 2। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है। बेस सेम होने से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स विल गेट एडेड अप, और बेस सेम होने से डिवाइड होगा तो पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड। आर वी क्लियर ऑन दिस? आई नीड सम थम्स अप so that I can move ahead. Fine. When any base is raised to the power 0, it is 1. And when base is equals to output, the power is 1. Concept 3 and 4. Any base raised to the power 0 is 1. And when base is equals to output,
पावर इज 1, इसका मतलब पावर में कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग 1 मान सकते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। a to the power minus 3 is 1 by a cube, और 5 by x square can be written as 5 into x to the power minus 2. So when powers are shifted from numerator to denominator, the sign gets changed. When powers are shifted from numerator to denominator, the sign gets changed. So if we have, for example, a to the power m by a to the power minus n, so what we are going to write? A to the power m minus of minus n, it will become a to the power n plus n. So whenever we are shifting the powers from denominator to numerator or from numerator to denominator, the sign of the power gets changed. The sign of the power gets changed. The sign of the power gets changed. A to the power m whole to the power n is a to the power m into n. So we say over here is power of a power gets multiplied. Power of a power gets multiplied. Power of a power gets multiplied. So we can take n number of examples in this. X cube whole square will become x to the power 3 into 2, that is x to the power 6. X square whole to the power minus 3 will be x to the power 2 into minus 3. It means x to the power minus 6, which in turn we can write 1 by x to the power 6. Even if you have xy square whole cube, it will turn down to x cube into y square whole cube, that is x cube y to the power 6. So power of a power gets multiplied. Power of a power gets multiplied. Power of a power gets multiplied. But what we do if we have a situation like this, y cube square. And what is the meaning of y cube whole square? Yes, आप में So, हाँ, can you please repeat the xy square and the whole square 3? ओके. सो ये कॉन्सेप्ट में आ रहा है आपका कि ए बी होल टू द पावर m अगर है, ठीक है, सो इट विल बिकम a टू द पावर m into b to the power m. So whenever we are taking the powers within the brackets, each variable and constants will receive that power. So यहाँ बीच में एक्स वाई स्क्वायर मत पढ़ो, इसको तुम ऐसे पढ़ो x इंटू वाई स्क्वायर. तो x के पावर में भी 3 जाएगा और वाई स्क्वायर के पावर में भी 3 जाएगा. ठीक है, Yes, sir. चलिए इसका डिफरेंस मेरे को समझाइए. y टू द पावर 3 टू द पावर 2 क्या है और y क्यूब होल स्क्वायर क्या है? इसका मतलब है, यस मिनर्वा, Sir, I guess here y cube square means y cube into y cube, and y cube ka whole square means the powers will get multiplied and it will result in y raised to 6. तो यू मीन टू से बोथ द आंसर्स आर सेम? Yeah. नहीं, यहां पर क्या है, बेस
is y, power is 3 square, which is 9. But in the other scenario, base is y cube and power is 2. So it becomes y cube into y cube, that is y to the power 6. पूरा खेला ब्रैकेट्स का है, सारा खेला ब्रैकेट्स का है, सारा खेला ब्रैकेट्स का है. तो ब्रैकेट का इतना रेलिवेंस होता है. दिस इज पावर ऑफ अ पावर, दिस इज जस्ट वन पावर. इसको एज अ होल वी आर टेकिंग एज वन पावर. क्लियर? Okay, sir. So a to the power n equals to b, we can write a is equals to b to the power 1 by m. So when power is shifting the sides, it gets reciprocal. When power is transferred from LHS to RHS or from RHS to LHS, it gets reciprocal. Sign remains same. Sign remains same. When powers is shifted from LHS to RHS, RHS to LHS, it gets reciprocal. The sign remains same. इसका मतलब 2 cube equals to k है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं 2 equals to k to the power 1 by 3. और अगर 2 to the power minus 1 by 3 equals to l है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूं l whole to the power minus 3. साइन नहीं बदलेगा, साइन सेम रहेगा. Only the powers will get reciprocal. Only the powers will get reciprocal. Only the powers will get reciprocal. बोलिए, ठीक है? सर एक बार और बताना. देखिए, से फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब इक्वल्स टू 729 है, ठीक है? एक्स क्यूब इक्वल्स टू 729 है. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? एक्स इक्वल्स टू 729 होल टू द पावर 1 by 3. Now 729 can be written as 9 का क्यूब whole to the power 1 by 3. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. मेरा आंसर आ गया 9 to the power 1, दैट इज 9. तो मैंने क्या किया? ऑन द फर्स्ट हैंड मैंने पावर्स को शिफ्ट किया ना, तो इट गेट्स रेसिप्रोकल. ठीक है? नेक्स्ट, इफ x to the power a equals to y to the power a, then x equals to y. If x to the power a equals to x to the power b, then a equals to b. So what is the learning? The learning is when powers are same, base will be equal, and when bases are same,
powers will be equal. When powers are same, base will be equal. When bases are same, powers will be equal. खाली रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर हाफ. तो nth रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स टू द पावर 1/n. क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स टू द पावर 1/3. तो nth रूट ऑफ एक्स टू द पावर m क्या होगा? एक्स टू द पावर m होल टू द पावर 1/n. सो एक्स टू द पावर m/n. This is a very important thing जो हम लोग को समझना होगा. रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ. nth रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/n. क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1 जो nth रूट था n की जगह 3 आ गया. कुछ नहीं है मतलब 2 है. ओनली रूट मतलब स्क्वायर रूट. तो rather we write this properly. This is this. So how do you write x root x? x into x to the power half. कुछ नहीं है मतलब 1 है. x के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है. Since the bases are same, the powers will get added up. So x to the power 3/2. x to the power 3/2. x to the power 3/2. तो बताओ x स्क्वायर बाई रूट एक्स. तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख सकता हूं? x टू द पावर 2 माइनस हाफ. क्योंकि रूट एक्स का मतलब x के पावर में क्या है? हाफ. ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ. सो x टू द पावर 4 माइनस 1/2 दैट इज x टू द पावर 3/2. मतलब x रूट एक्स. Sir, uh, हाँ. can you please repeat this one? X square Okay. upon root x. तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हो. Yes, sir. अब क्या होगा? a टू द पावर n बाई a टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m माइनस n. Yes, sir. तो उसी कॉन्सेप्ट से 2 माइनस हाफ हुआ. फिर एलसीएम लेके हम लोग आगे बढ़े. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. क्लियर है इंडिसेस का बेसिक्स. Yes, sir. So there are problems like this. Root over 8, root over 8, root over 8. चलता ही जाएगा. ये बोलता है इसका आंसर क्या है. तो शॉर्टकट में बोला गया है कि इफ रूट ओवर 8 goes on, the answer will be 8. The answer will be 8. These are some short tricks.
some short tricks you need to remember. तुम लोग को पता हो √20 √20 डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर क्या होगा? 20. वेरी गुड। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नंबर है वही। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट शॉर्टकट। यस विनर्वा। सर बट इसमें फिर इन्फिनिटी होना चाहिए ना, तभी अगर कहीं पे स्टॉप हो रहा है हाँ, तब तो कुछ आंसर होगा ना। चलते जा रहा है ना ये तो। हाँ ये तो इन्फिनिटी है तभी सेम आया ना। हाँ, हम्म। अगर यही मैं बोल देता एन टाइम्स एम टाइम्स, उसका फॉर्मूला अलग। ओके। ठीक है, अच्छा यही अगर डिवाइड होता है तो आंसर है क्यूब रूट। आंसर है क्यूब रूट। डिवाइड के केस में आंसर है क्यूब रूट। मल्टीप्लाई के केस में जो है सो है, डिवाइड के केस में आंसर है क्यूब रूट। अगर प्लस है सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रेक द नंबर into two consecutive numbers। बड़ा वाला आंसर है। अगर प्लस है तो वी हैव टू ब्रेक द नंबर्स into two consecutive numbers। बड़ा वाला विल बी द आंसर। और अगर माइनस है तो छोटा वाला विल बी द आंसर। प्रोसेस सेम होगा प्लस माइनस के केस में। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, या तो प्लस है या तो माइनस है। इट इज नॉट प्लस माइनस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। That you have to take care of. सर अगर प्लस माइनस वाला होगा तो उसको सॉल्व करके वो एग्जांपल लेके शॉर्टकट बताएंगे। में नहीं, वो शॉर्टकट में कैसे आएगा बताओ? फिर बहुत डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। अभी इन द प्रीलिमिनरी लेवल वी विल लर्न दिस। इसी प्लस दिया हुआ है, सिर्फ माइनस दिया हुआ है, तो ये है। वी आर ब्रेकिंग दोज इनटू शॉर्ट फॉर्म्स एंड वी आर मूविंग अहेड। प्लस माइनस में याद रखना है हम लोग को, जहां पे सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करना है। जो बड़ा वाला है वो प्लस का आंसर होगा, माइनस वाले में छोटा वाला इज द आंसर। तो से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ रहा है ये 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस, इसका आंसर क्या होगा बताओ? 5। इसका आंसर 5 होगा, क्योंकि 30 को हम लोग किसमें ब्रेक कर रहे हैं? 6 और 5 में। 6 माइनस है, इससे कौन सा आंसर होगा? छोटा वाला। माइनस इसमें कौन सा आंसर होगा? छोटा वाला। और प्लस होने से लार्जर वन, बड़ा वाला। बड़ा वाला। ठीक है, चलिए। सो once again we will write। सर एक बार प्लीज वो 8 वाला एग्जाम्पल दिखा दीजिए, √8 वाला था। हाँ, मल्टीप्लाई में है तो नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। डिवाइड में है
तो क्यूब रूट ऑफ द नंबर इज द आंसर. हाँ ठीक है, थैंक यू. फिर से हम लोग लिखेंगे इफ a to the power x equals to n, then log n base a equals to x. So this is the exponential form and this is the logarithmic form. So what we are seeing over here is कि अगर आउटपुट बड़ा है तो हम लोग कैसे इजीली बेस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम. विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम इसमें भी एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है कॉमन लॉगरिथम. नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई होता है और कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होता है. नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई होता है, कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होता है. ठीक है. तो लॉग का डेफिनेशन बोलता क्या है? लॉग का डेफिनेशन बोलता है लॉगरिथमिक ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n. लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n to a given base is the power to which the base must be raised, is the power to which the base must be raised to produce n. Is the power to which the base must be raised to power to which the base must be raised to produce n. ठीक है. इसका मतलब अगर हम लोग अपनी भाषा में समझे, बेस का कितना पावर n होगा, that power is the answer of the logarithm. बेस का कितना पावर n होगा, बेस का कितना पावर n होगा, दैट पावर इज द आंसर ऑफ द logarithm. तो अभी तक मैंने आपको लॉग का कोई भी फॉर्मूला सिखाया है, प्रॉपर्टी सिखाया है? यस, सिखाया है क्या? हाँ या ना? हाय गाइस, अभी तक मैंने आपको लॉग का एक भी फॉर्मूला या प्रॉपर्टी बताया है? नहीं, बोलो नहीं. नहीं सर. ठीक है. तो हम लोग एक सम देखते हैं लॉग का. सम्स है लॉग 64 बेस में 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग को फिर से पढ़ना है. बेस का कितना पावर n, मतलब नंबर. नंबर मतलब क्या? 4 का कितना पावर 64 होगा, मतलब 4 का पावर में से क्या लिखेंगे कि 64 आ जाए, ये सोचना है हम लोग. ठीक है. तो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 टू द पावर 1 से 4 आएगा, 4 टू द पावर 2 से
16 आएगा, 4 टू द पावर 3 से 64 आएगा। इसका मतलब अगर 4 की पावर में 3 होता तो मेरा आंसर क्या आता? 64. 64। बेस का कितना पावर नंबर होगा, दैट पावर इज द आंसर ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, तो वंस अगेन आप मेरे को इसका आंसर बताएंगे। लॉग 16 बेस में 2। चलिए आंसर बताएंगे। 4. 4। ठीक है, चलिए फिर से बताइए। लॉग 1 बेस में 2। सर माइनस में थोड़े आ सकता है। क्या? सर मैंने बेस बोला इज 2. लॉग मैंने बोला लॉग का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, फाइनल वैल्यू तो नेगेटिव में आ ही सकता है। जहां मैं 64 और 16 लिख रहा हूं ना, वहां मैं इसको -64 -16 नहीं लिख सकता। तो 0. लॉग 1 बेस, वेरी गुड, इसका आंसर तो 0 होगा ना। बेस कुछ भी हो, किसी भी बेस का अगर आउटपुट मेरे को 1 चाहिए तो पावर क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज 1। 1. कहां पढ़े हम लोग अभी? इंडिसेस में पढ़े हैं ना? बोलो हाँ पढ़े हैं। सर आवाज नहीं ठीक आ है, रही सर। हेलो हेलो. हेलो, हाँ आई एम ऑडिबल? यस आवाज. सर, आ यस रही। सर. सो हम लोग अभी इंडिसेस में पढ़े हैं ना, एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। चेक करिए, ये रहा थर्ड नंबर जो यस प्रॉपर्टी। सर। सो अगर लॉग का वैल्यू 1 है, इरेस्पेक्टिव ऑफ बेस 0 होगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ बेस क्या होगा? वो 0 होगा, बिकॉज बेस के पावर में 0 होगा तो ही आउटपुट 1 आएगा। आप कोई भी आउटपुट लिख दीजिए, अगर आपको 1 ऐसा आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही है। पहला स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू अ गिवन बेस a is 0, a should not be equals to 1। a मतलब बेस ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव 0 एंड 1। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव 0 एंड 1। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव 0 एंड 1। तीसरा, वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम can be positive, 0 and negative. There is a difference between number of the logarithm and value of the logarithm. There is a difference between number of the logarithm and value of the logarithm. So if I write log n base a equals to x, तो इसको बोला जाता है नंबर। This has to be greater than 0. And when I talk about this is value. ये तुम्हारा -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी हो सकता है। ये तुम्हारा -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी हो सकता है। ये तुम्हारा -इंफिनिटी
टू प्लस इंफिनिटी हो सकता है। एम आई करेक्ट? क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी में जाते हैं। log a इंटू बी इज log a प्लस log b। बेस शुड बी सेम। बेस शुड बी सेम। बेस शुड बी सेम। ठीक है, यही अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। ये अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। ये अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। बेस और ये सेम होने से 1 होता है, और बेस कुछ भी हो, अगर वैल्यू 1 है तो 0 होगा। इफ द नंबर एंड द बेस आर सेम, वैल्यू विल बी 1। if the number and the base are different, but if the number is 1, base irrelevant, आंसर विल बी 0। क्योंकि इंडिसेस हम लोग पढ़े हैं, इंडिसेस में हम लोग पढ़े हैं एनी बेस रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। यस मिनर्वा? सर व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ बेस? मतलब यूज किस लिए होता है? मतलब बेस में हम लिखते क्यों है ई? अगर मतलब क्योंकि लॉग ही तो वैल्यू तो 1 ही होती है ना, बट तो लॉग। जैसे जैसे आपका वैल्यू चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू, एक्चुअली जब आप डेरिवेटिव समझेंगे ना, हम्म। ठीक है, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक चीज समझो, मैं आपको चीज समझा रहा हूं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल वी टेक बेस एस 2, ठीक है। 2 का पावर 0 क्या आएगा? 1 1। 2 का पावर 1 क्या आएगा? 2 2 का पावर 2 क्या आएगा? 4 3। 8। ये आप ही बोले, मैंने नहीं बोला। चलो, हम्म। जैसे मैं बेस चेंज कर रहा हूं, हाँ ये क्या रहेगा? 1। हाँ। ये क्या हो जाएगा? 3 3। ये 9 9। ये 7। सो जैसे जैसे बेस चेंज हो रहा है, वैसे हम्म वैसे आपका वैल्यूज चेंज हो रहा है ना। हम्म। तो किस वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो बेस है, तभी ना मेरा आउटपुट आएगा। ओके, मतलब जैसे नॉर्मली हम पावर में लिखते हैं, बट अगर लॉग की फॉर्म में बेस पावर की इक्वली होती है। बेसिकली टू फाइंड आउट हाई वैल्यूज ऑफ पावर ओनली वी यूज लॉगरिथम। अगर ओ, छोटा मोटा रहता है तो हम लोग इंडिसेस यूज करते हैं, बट व्हेन हम्म। इट इज ऑन अ लार्जर स्केल फॉर अ डेसिमल, वी विल यूज लॉगरिथम। ओके ओके से सर। फॉर एग्जाम्पल पावर में 0.1 है या 0.01 है, हम्म। वो सब सिचुएशन में वी यूज लॉगरिथमिक टेबल। ओके ओके। ठीक है, तो ये बेसिक वाला क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर log a टू द पावर m है, तो पावर सामने आ जाएगा।
So power will come in the front. It will become coefficient of log. Power of a number of a logarithm. Power of a number of a logarithm becomes the coefficient of the logarithm. Becomes the coefficient of the logarithm. But लोग कंफ्यूज कहाँ करते हैं? log a base e whole to the power m है. This is not equals to m log a base e. This is not equals to m log a base e. इसका मतलब क्या हुआ? log a base e into log a base e कितना बार? m times. इसका मतलब ये हुआ. नंबर ऑफ अ लॉगरिथम के पावर में अगर कुछ आता है तो वो लॉग के सामने आता है. नंबर ऑफ द लॉगरिथम में कोई पावर है तो वो लॉग के सामने आएगा. अदरवाइज ध्यान रखना है हम लोग को. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. log a base e equals to x, then a is equals to anti-log x with respect to base e. Yes, Rajesh? सर ये ऐसे ही हमें लर्न करना पड़ेगा क्योंकि मेरी 11th-12th में मैथ नहीं थी ना, तो मतलब ये जो आप लॉग के जो फॉर्मूलेज लिख रहे हो वो ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा. हाँ, हम लोग जब आगे नेक्स्ट क्लास में जब सम्स भी करेंगे ना तो हम लोग देखेंगे कि यही फॉलो हो रहा है, यही प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहे हैं. ठीक है, ओके Sir, हाँ बोलो. can you please repeat जो अभी आपने बताया था is not equal to वाला? देखो पहले एक बार ये वाला समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसमें जाएंगे वापस. ठीक है, तो Okay, मैं क्या बोल रहा हूँ कि log 2 बेस 10 का वैल्यू है 0.3010. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंटी लॉग 0.3010 विल बी इक्वल्स टू 2 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10. उल्टा भी बोल सकते हैं हम. तो लॉग को अगर हम लोग को रिमूव करना है तो हम लोग को एंटी लॉग लेना पड़ेगा. लॉग का रिवर्स इज एंटी लॉग. जैसे बोलते हैं ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बोला जाता है ना, वैसे ही एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग. सो इफ से फॉर एग्जाम्पल log x इक्वल्स टू log 4 दिया हुआ है, अब लोग करेंगे log log काट के लिखेंगे x इक्वल्स टू 4. ये गलत है. भले ही आपका आंसर राइट हो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट गलत है. log एक एक्सप्रेशन है, आप log log कैंसिल नहीं कर सकते. हाँ, log x कैंसिल हो सकता है, वो आइडेंटिकल है, बट यू कैनॉट कैंसिल log. We have to write like this: if log x equals to log 4, taking anti-log on both the sides, x equals to 4. Since anti-log of log x is x, since anti-log of log x is x, so अगर दोनों साइड में log है और आपको उसको रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे? काट देंगे उसको. You will cancel out. Yes. No. Will you cancel out?
तो क्या करेंगे आप बताइए? सर एंटी एंटी लॉग। लॉग लगा। विल ब्रिंग एंटी लॉग, वी विल ब्रिंग एंटी लॉग। ठीक है, सो आप ये वाला पूछ रहे थे ना? Yes, sir. तो देखिए, एग्जाम में सम्स आया log x क्यूब बेस में e इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आप क्या लिख सकते हैं इसको? 3 log x बेस e। ठीक है, Yes, sir. इसका रीजन क्या पता है आपको? इसका रीजन ये है क्योंकि x क्यूब को यू कैन राइट x इंटू एक्स। यस, सिंस इंटू में है तो ये प्लस हो जाएगा। Yes, sir. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 log x बेस e। a प्लस ए क्या होता है? 3 होता है ना। Yes, sir. लेकिन अगर मान लो log x बेस e होल क्यूब है तो क्या होगा? log x बेस e इंटू log x बेस e इंटू log x बेस e। डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गई यही ना? क्या? ये साइन जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई का आ गया। हाँ, क्योंकि ये log x का होल क्यूब है, पूरे log का क्यूब है ये, और पिछला वाला सम में खाली log के नंबर का क्यूब था। Okay, sir. अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट्स। Yeah. ठीक है ना? Yes, sir. तो नेक्स्ट वी गो अहेड कि अगर log a बेस b है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log a बेस c इंटू log c बेस b। चेंज ऑफ बेस, ये चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला नंबर 1 है, चेंज ऑफ बेस। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये हुआ कैसे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, ये चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला नंबर 2 है। नंबर को अलग, बेस को अलग। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं हम लोग log a बेस e log b base e, and now we are bringing in c base e, c base e। इसीलिए वो a बेस c इंटू c बेस b हो गया। तो ये Sir, I change of, didn't get. Can you please repeat? देखो ऐसे समझो, ये लास्ट स्टेप है। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। फिर log a बेस b को आप log a बेस e बाई log b बेस e लिख सकते हो। तो नंबर को अलग, बेस मतलब नंबर को अलग, बेस को अलग। नंबर चला जाएगा न्यूमरेटर में और बेस चला जाएगा डिनोमिनेटर में। पहले स्टेप 1 समझ में आया तो मैं स्टेप 2 में जाऊंगा। नहीं, sir. ठीक है,
मैं ये बोल रहा हूं अगर log x बेस y है तो आप इसको ऐसे log x बाय log y लिख सकते हो विथ अ कॉमन बेस। ओके सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। log 8 बेस 2 है तो आप इसको log 8 बाई log 2 लिख सकते हैं विद अ कॉमन बेस। जो भी कॉमन बेस आप लेना चाहे, जनरली हम लोग ई या 10 लेते हैं। ठीक है, बोलो ये स्टेप समझ में आया। यस सर। अब किसी भी चीज को अगर आपको लाना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई log c बेस c। वो मैं कर ही सकता हूं, उसमें कोई मनाही है क्या? नहीं। चलिए आइए, अगर 2/3 है तो क्या मैं इसको 10/15 लिख सकता हूं? यस सर। तो टेक्निकली क्या हो रहा है, 2/5 इंटू 5/3। यस सर। हम लोग ने वही किया है एंड देन वापस से इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले गए। अगर ये ऐसे हो सकता है तो ये वाला ऐसे भी तो हो सकता है। ऑल द लॉज एंड प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल, वाइस वर्सा। इफ समथिंग कैन बी रिटन एज दिस, then this can be written as something. ठीक है, चेंज ऑफ बेस। सर ये फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा ये फॉर्मूला 3 है। फॉर्मूले। तीसरा अच्छा, 2 बताएंगे फॉर्मूले बताएंगे हैं। अभी। ये पहला है, ये दूसरा है। ये पहला है, ये दूसरा है। सर आपने जो पहले वाले फॉर्मूले को जो मल्टीप्लाई करके किया है उसी से ही तो सेकंड फॉर्मूला बना है ना। यस यस। सो टेक्निकली आप किसी टेक्स्ट बुक वगैरह में देखोगे तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बताता है, दूसरा वाला, बट उसका डेरिवेशन मिसिंग है। इसीलिए मैंने डेरिवेशन करके समझाया स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। ठीक है, अब तीसरा क्या बोलता है? तीसरा फॉर्मूला ये बोलता है कि log a बेस b को आप 1/log b बेस a लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेशन क्या हुआ? इसको आप लिख सकते हैं log a बाई log b। हाँ, यस सर। नेक्स्ट स्टेप में 1/log b बाई log a, नीचे ले आए उस, वहां से ये आ गया। सर नीचे कैसे? तुम इसको सोचो, 2/3 है कि यस सर। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? यस सर। बात तो सेम ही है। हम्म। ओके सर। ठीक है, यस सर। यहां तक क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. सो अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि log 2 बेस 10 is 0.3010, फाइंड log 5 बेस 10, तो क्या करेंगे आप?
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट log 10 base 10 is equals to 1. ये स्टेप क्लियर है? Yes. Yes. उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं 10 को 2 into 5 लिख सकता हूं? उसके नेक्स्ट स्टेप में इंटू है तो क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूं? Yes, sir. उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं? टू को उधर ले गया Yes, sir. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? log 5 base 10 equals to 1 minus 0.3010 0.6990. Yes, sir. ठीक है? Yes. Yes, sir. So I'll tell my team to share this resource with you. ठीक है? So आप देखिए इसको अच्छे से. Yes, मिनरवा. सर तो मतलब जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर जो बेस है वो सेम है बट जो ऊपर के नंबर्स है वो डिफरेंट है, तो उसमें सेम को लेकर वन वैल्यू लिख के वैसे ही हाँ, सॉल्व करना है. हाँ, हाँ. आपको 4-5 तो प्रॉपर्टी बता दिया है. अब हाँ सारा जी. लॉग का सम वैसे ही होगा. थोड़ा बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे, सॉल्विंग आएंगे, इक्वेशंस आएंगे, बट होगा उसी 4-5 नंबर से सॉल्व. ओके सर. ठीक है?